Assalamualaikum dear students. It's a course instructor described by from Division of Science and Technology. As in the previous lecture, we are learning project cost management, and we are going to continue the project cost management topic. And this is the course that we are learning as a project manager. And before starting today's lecture, we are going to revise or discuss previous things that we've discussed in previous lecture. First, I told you about the importance of project cost management. Then I give you the main definition of cost, what cost is, and what is project cost management. After that, we discussed the reasons for cost overruns, and before this, I told you about overrun also, that is basically the difference between the actual and the expected cost. After this, we've discussed project cost management processes, in which we learned three different types of cost management processes. One was cost estimation, the next one was cost budgeting, and the third one was cost control. In cost estimation, we have learned that this is the process that should start at the before the planning process, and in which we have learned uh, three different processes or tools for cost estimation. And then you discuss cost budgeting, and in cost budgeting you discuss or you learn that this is the further decomposition of cost estimation. In cost estimation, we used to do the whole um, estimation of cost, but in cost budgeting, we used to divide the whole cost into different modular costs, and then you have to decide the cost of each and every module separately. The last thing we discussed in project cost management process is about cost control, and then we discussed about the whole summary. In summary, we discussed cost estimation, budgeting, and control outputs. After that, I told you about the basic principles of cost management, in which we learned profit margins, life cycle costing. In profit, we learned that this is basically expenses minus your revenue, and profit margin is basically your profit per revenue. Life cycle costing is the total cost of ownership. Then I elaborated the cost of defects in software projects, and then we discussed that what is the basically the spending ratio or the increasing ratio if we are going to increase the increasingly doing your project life cycle of IT, and then how the increments in project life cycle increases the cost of repairing defects. Here I told you about the direct proportionality of the software or the cost, the software life cycle and the cost, that these are directly proportional. If the software life cycle increases, like the stages of step increases, the cost will increase definitely. Here we discuss basic principles of cost management. That was cost cash flow analysis. In cash flow, you studied about cash inflows and cash outflows. Tangible cost, that was the cost that can be measured. Intangible cost, the cost that cannot be measured, like your prestige, like your attitude, like your goodwill, like your gestures. Then we discuss about direct cost, indirect cost, or sunk cost. We discussed that the direct cost is one that is directly going to be with the project. Indirect cost was that is indirectly using your project cost, that is for example, here it is given cost of electricity, paper towel, and I gave you certain more examples also. You can see in the last lecture. Then we discuss about sunk cost. Sunk cost is the cost that has been sunk, or the cost that has been wasted. Then we discuss about learning curve theory. And in learning curve theory, we discussed that this is basically the unit of cost those items decreases in a regular pattern as more units are produced. This was something if you are going to produce something in bulk, then the cost of per unit item will decrease for sure. Then we discuss about
reserve, and reserve were contingency reserves, management reserves. In contingency reserves, we said that these are the reserves that are basically known unknowns, and in that contingency reserve, we elaborated with the example of recruiting and training costs for expected personnel turnover during a project. That if there would be a personnel turnover, there would be expected training or recruitments, and that was known unknown. And management reserves are unknown knowns that are basically extended absence of a manager or supplier goes out of business. These are unknown knowns that will have to be paid in your process. Then we've discussed about three different methods of cost estimation. One was rough order of magnitude, budgetary estimate, definitive estimate. You can learn all of these by heart in the last lecture, or you can ask if you are not going to get the point which I was elaborated in the last lecture. You can always welcome to email me at my email address, that is iqi.itbal@ue.edu.uk. Types of cost estimate in the tabular form was elaborated to you. Then I told you about cost management plan, and then I told you about the variance of cost, that is actual minus expected. Cost estimation tools and techniques, in which I elaborated you about analogous and bottom-up estimates. Top-down or bottom-up, or you can say analogous or activity-based costing. In top-down, you've learned that the actual cost will be further divided into sub-module, and in bottom-up, you've learned that the sub-module will be separately estimated, and then the whole project would be summated to the separate small units. Parametric modeling was the cost estimation according to the parameters. Parameters can be different. It can be the experience level of any software engineer. It can be the line of code. It can be the data or the language that you are going to use, the tool that you are going to work on. All of these factors are parametric modeling, and these factors or parameters affect the cost estimation process. In today's lecture, you are going to learn typical problems with IT cost estimates. What type of problems comes under the cost estimation of IT projects? तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आईटी प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन में आता है वो है एस्टिमेट्स आर डन टू क्विकली। एस्टिमेट्स जो हैं वो बहुत स्पीडली या बहुत जल्दी जो है वो कर दिए जाते हैं। मैनी एस्टिमेट्स मस्ट बी डन क्विकली बिफोर क्लियर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, और ये कंसिडर किया जाता है कि जी एस्टिमेट्स पहले से ही लगा लेने चाहिए, इससे पहले कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लियर हो जाए। अब इससे ये होता है कि या तो आप ज़्यादा एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप इसी ग्रीड में आके अपने एस्टिमेट जो है वो ख़राब कर जाते हैं। पॉइंट नंबर टू, ये जो प्रॉब्लम नंबर टू है वो है लैक ऑफ एस्टिमेटिंग एक्सपीरियंस। अब जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सपीरियंस नीडेड होता है। जैसे कि आपने पिछले क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, आपका जो है रोम वाला जो है आपका रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला, उसमें आपने ये पढ़ा है कि आपके पास सिमिलर नेचर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके एस्टिमेशन जो है वो वहाँ से उठाए जा सकते हैं टॉप डाउन हायरार्की को फॉलो करते हुए या टॉप डाउन एस्टिमेशन टेक्निक को फॉलो करते हुए। पर फिर वही बात है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और इफ़ यू आर नॉट गुड इन टू इट, तो फिर आप अगर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए भी एस्टिमेशन करेंगे तो वो भी आप गलत एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। So the people developing the cost estimates often don't have much experience, especially on large projects. उन्हें बड़े प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता, अच्छा तजर्बा नहीं होता, तो वो अच्छे एस्टिमेट्स नहीं कर सकते। There is not enough accurate, reliable project data available on which to base estimates. और अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से नहीं पता तो भी आप अच्छे एस्टिमेट्स नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप किसी भी तरह का कोई एस्टिमेट कर दें। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट लेवल के डेवलपर्स होते हैं वो फ्रीलांस करते हुए अक्सर कम बिड कर जाते हैं या कुछ इस तरह का कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनको बस ये प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रही होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। जो भी एस्टिमेशन दी होती है आपने कॉस्ट की, टाइम की, वो सारी की सारी आपकी फिर एट द एंड वन हो जाती है। थर्ड प्रॉब्लम इज ह्यूमन बीइंग्स आर बायस्ड टुवर्ड्स अंडर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन के लिए बायस जाते हैं हम इंसान। सीनियर लेवल जो डेवलपर्स हैं वो जूनियर्स के लिए और जूनियर लेवल जो है वो सीनियर्स के लिए।
Senior team members make estimates based on their skill level, but should take into account the junior people on the project. अब अगर आपके एस्टिमेशन है तो सीनियर टीम मैनेजर्स ने कर दिए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जाहिर है सीनियर टीम मैनेजर्स के ही पार्ट होते हैं, उन्होंने एस्टिमेशन किया अपने अकॉर्डिंगली, जबकि आपका जो काम है उसके अंदर प्रोजेक्ट के जूनियर टीम मेंबर्स भी शामिल हैं, तो यू शुड हैव टू कंसिडर देम टू कि आपके लिए जो चीज़ बहुत ऑन पॉइंट हो सकती है या बहुत जल्दी का काम हो सकती है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो उतनी ऑन पॉइंट ना हो. Management desires accuracy but wants to spend less in order to win a bid or internal funding. अब ये आपका लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर वो क्या कह रहा है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसको ज़रूरत होती है एक्यूरेसी की, वो चाहती है आपका इदारा आपसे चाहता है कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो आउटपुट हैं वो बहुत एक्यूरेट हो, बट वॉन्ट्स टू स्पेंड लेस इन ऑर्डर टू विन अ बिड और इंटरनल फंडिंग. लेकिन आपसे क्या एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि आप जो है वो आपके ऊपर कम एक्सपेंड जो है वो कम स्पेंड किया जाए, ताकि आपकी जो प्रोजेक्ट की जो बिड है या जो आपकी इंटरनल फंडिंग है वो जीती जा सके. वही बात जो अभी मैं आपको फ्रीलांसिंग के लिए कह रही थी कि अगर आपने कम बिड कर दिया होगा तो फिर आपके लिए ही प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा वो प्रोजेक्ट, तो फिर उसको करने का फ़ायदा नहीं है, इतना टाइम स्पेंड करने का फ़ायदा नहीं है. तो वो चीज़ जो है वो आपकी मैनेजमेंट आपसे काम पूरा निकलवाएगी, लेकिन उसके बाद आपको उसके लिए जो कॉस्ट आपके ऊपर लगानी है जो कि डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि आप लेबर हैं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो वो कम कर देते. दैट इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट. The top management never forgets the first estimate and rarely, if ever, remembers how approved changes affect the estimate. तो टॉप मैनेजमेंट जो है उसको ये याद रखना चाहिए कि आपका जो भी पहला एस्टिमेट था वो क्या था, और अगर वो याद है तो फिर उसके ही अकॉर्डिंगली उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना चाहिए, और अगर चेंजेस करने पड़े तो उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए. द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट कीप द कम्युनिकेशन लाइंस ओपन एट ऑल टाइम्स. प्रोजेक्ट मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने हर एम्प्लॉय के साथ, अपने हर लेबर के साथ, अपने हर डेवलपर के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, तो दैट किसी भी तरह का झोल अगर आपके प्रोजेक्ट में आ रहा है तो उसको उसी टाइम पे केटर किया जा सके. सैम्पल कॉस्ट एस्टिमेट. Before creating an estimate, know what it will be used for, gather as much information as possible, and clarify the ground rules and assumptions for the estimate. एस्टिमेशन करने से पहले आपसे कहा जा रहा है कि आपको सारी ग्राउंड रियलिटीज़ का और आपको सारी डिटेलिंग का पता होना चाहिए, ताकि आप जब कॉस्ट एस्टिमेट करें तो यू शुड हैव टू बी वेरी मच नोन अबाउट द प्रोजेक्ट. इफ पॉसिबल एस्टिमेट कॉस्ट बाय मेजर WBS कैटेगरीज. अगर पॉसिबल हो सकता तो एस्टिमेट करने से पहले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देख लें. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से आपको आपके प्रोजेक्ट का स्कोप बड़े ज़्यादा क्लियर हो जाता है और आपको एस्टिमेट करने में आसानी हो जाती है कि आपने कॉस्ट कितनी रखनी है इस प्रोजेक्ट की. पॉइंट नंबर 3, क्रिएट अ कॉस्ट मॉडल टू मेक इट ईजी टू मेक चेंजेस टू एंड डॉक्यूमेंट द एस्टिमेट. अगर आपने कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है तो आप एक कॉस्ट मॉडल बना लें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और बाद में डॉक्यूमेंट करना एस्टिमेट को आसान हो जाए, क्योंकि आपने एक मॉडल रेडी कर लिया अपने अकॉर्डिंगली कि मैं इतने पैसे इस मॉड्यूल पे और इतने पैसे इस फंक्शनैलिटी पे लगा रहा हूँ, इस रिसोर्स को मैंने इतने पैसों के लिए या इतनी कॉस्ट पे यूटिलाइज करना है. तो वो जब आपने एक मॉडल सा रास्ता बना लिया होगा, तो जब आप फाइनली अपने उस कॉस्ट एस्टिमेशन को डॉक्यूमेंट करेंगे तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू हैंडल द कॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट बजटिंग. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉस्ट बजटिंग क्या चीज़ होती है. आपके सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल के अंदर जो भी काम हो रहा होता है वो कॉस्ट बजटिंग के अंदर आता है. कॉस्ट बजटिंग इन्वॉल्व एलोकेटिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट टू इंडिविजुअल वर्क आइटम्स ओवर टाइम. हर एक सेपरेट वर्क आइटम के ऊपर पैसा कितना लगाना है, कितनी कॉस्ट जो है वो स्पेंड करनी है, ये चीज़ कॉस्ट बजटिंग के अंदर आती है. The work breakdown structure is a required input to the cost budgeting process since it defines the work items. अब क्योंकि हर एक वर्क आइटम को अलग-अलग से कॉस्ट असाइन करनी है, तो आपको वर्क आइटम के बारे में पता होना चाहिए, और आपको वर्क आइटम कहाँ से मिलता है, आपको वर्क आइटम मिलता है आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से. तो वो ये आपको कह रहा है कि कॉस्ट बजटिंग का जो इनपुट होता है वो आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा तो आपके हर मॉड्यूल की सेपरेट बजटिंग हो सकेगी. An important goal is to produce a cost baseline. और सबसे अहम चीज़ क्या है कि आप cost baseline रेडी कर लो. A time-phased budget that project managers use to measure and monitor cost performance. और cost baseline क्या है? एक time-phased budget है जो कि आपके project managers इस्तेमाल करते हैं आपकी cost performance को measure करने के लिए या monitor करने के लिए. This is just like a Gantt chart kind of thing.
उसके अंदर भी यही होता था कि आपने एक टाइम बेस्ड अपने जो मॉड्यूल्स हैं या आपके जो फंक्शंस हैं उनका आपने एक टाइम बेस्ड मैप बना लिया होता था। आपने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर जो आपने पढ़ी है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, उसके अंदर आपने गैंट चार्ट को डिटेल से पढ़ा भी है, देखा भी है, एग्जाम्पल्स भी की हैं और वो भी देखी हैं। तो आपकी जो गैंट चार्ट है वो तो बेसिकली टाइम बेस्ड होता है, तो जो कॉस्ट बेस्ड होता है उसको कॉस्ट बेस्ड लाइन कहते हैं। Estimate cost for each major project activity over time provides management with a foundation for project cost control. हर एक सेपरेट एक्टिविटी, हर एक मेजर एक्टिविटी के बारे में आप बताते रहें, उसकी एस्टिमेटेड टाइम और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताते रहें, ताकि एट द एंड कोई भी सरप्राइज फैक्टर जो है वो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट ना हो, बल्कि सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी नोन हो। Cost budgeting also provides information for project funding requirements. At what point in time will the money be needed? Cost budgeting जो है वो आपको क्या आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है प्रोजेक्ट की फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन से वक्त पे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। जस्ट बिकॉज आपको वर्क आइटम्स कह रहे हैं और आपको ये पता है कि कौन से वर्क आइटम को कब बनाना है, कॉस्ट बेस लाइन ने आपको ये बता दिया कि कौन से वर्क आइटम पे कितने पैसे लगाने हैं, तो जब आपको ये डिटेल्स पता है तो आपको फिर ये भी बात पता चल जाती है कि आपने इस प्रोजेक्ट के कौन से पार्ट पे किस वक्त में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये प्लान्ड हो जाती है, ना कि बस की ज़रूरत पड़ गई है तो पैसा खर्च कर दो, ऐसा नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑलरेडी प्लान है 2-3 साल 5 साल प्रोजेक्ट के, आपको क्लियर है कि आपने इस इन सालों में इस प्रोजेक्ट को इतने महीनों पे इतने टाइम पे इतने पैसे इन्वेस्ट करने। द लास्ट थिंग वॉज कॉस्ट कंट्रोल, और जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आप मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट से ही कॉस्ट एस्टिमेशन से शुरू हो जाता है, कॉस्ट बजटिंग में भी रहता है और कॉस्ट कंट्रोल में भी तो होता ही होता है। Project cost control includes monitoring cost performance, ensuring that only appropriate project changes are included in a revised cost baseline, informing our project stakeholders of authorized changes to the project that will affect cost. अब आपने सबसे पहले मॉनिटर करते रहना है कॉस्ट को, उसके बाद आपने ये देखते रहना है कि कोई चेंजेस आई हैं तो क्या आई हैं, और अगर चेंजेस आई हैं तो आपकी कॉस्ट बेस लाइन में क्या चेंज आया है, और अगर कॉस्ट बेस लाइन में कोई चेंज आया तो आपने स्टेक होल्डर्स को भी बताना है कि ये चेंज जो है वो आपकी मेजर प्रोजेक्ट में आया है, क्योंकि वो मेजर प्रोजेक्ट में चेंज आया तो कॉस्ट बेस लाइन में भी उसी हिसाब से कॉस्ट एस्टिमेशन में बढ़तरी या बदतरी, तंजली आई है या अबतरी आई है, बेहतर हो गया। Many organizations around the globe have problems with cost control, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पूरी दुनिया के अंदर उन्हें कॉस्ट कंट्रोल में प्रॉब्लम है, और इसी वजह से आईटी प्रोजेक्ट मैनेज जो आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ओवररन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनके डिफरेंसेस एक्चुअल और एस्टिमेटेड के ज़्यादा हैं, क्योंकि एक्चुअल एस्टिमेशन जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये मीडिया स्नैपशॉट दिया हुआ है कि आपके पास डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर डिफरेंट ममालिक के अंदर दुनिया के किस किस तरह से कॉस्ट एस्टिमेशन ने अपना रोल प्ले किया है। सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्रॉब्लम्स विद द installation of ERP system at Train Group Limited led to an estimated cost overrun of $11.5 million। मतलब कि आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन की गलती ने, कॉस्ट एस्टिमेशन ओवररन ने आपके ERP इंस्टॉलेशन के ऊपर $11.5 मिलियन का खसारा दिया। India के अंदर as many as 274 projects currently under implementation in the central sector are suffering serious cost and time overruns. Only 65 are being monitored on a regular basis. अब 274 प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ 65 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंट्रोल किया जा रहा है, जिनकी कॉस्ट कंट्रोल किया जा रहा है, टाइम कंट्रोल किया जा रहा है, तो फिर एक सीरियस ओवरहेड बन जाता है आपके पास कॉस्ट का भी और टाइम का भी, कि आपका प्रोजेक्ट ना तो टाइमली फिनिश हो रहा है और ना ही गिवन बजट में फिनिश हो रहा है। तो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के सक्सेस रेशो कैलकुलेट करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। थर्ड, इन्होंने पाकिस्तान के बारे में मेंशन किया हुआ है। पाकिस्तान हैज सस्टेन्ड अ कॉस्ट ओवररन ऑफ 1.798 बिलियन ओवर 30 मिलियन यूएस डॉलर्स in the execution of the 66.5 megawatt Jagran hydropower project in the Neelam Valley, caused by massive mismanagement, embezzlement of funds, and unapproved changes in the project. अब आपके पास इतना बड़ा एक ओवरहेड आ रहा है कॉस्ट का, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने मिसमैनेजमेंट की थी। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने फंड्स जो हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे।
क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो चेंजेस किए थे उसको अप्रूव नहीं करवाया था। वही चीज़ पहले भी मेंशन की गई थी कि कॉस्ट बेस लाइन को क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होगी तो फिर आप अपने स्टेक होल्डर्स को भी अपने एतमाद में ले सकेंगे। तो आपके पास प्रोजेक्ट का ओवररन आया। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या आया जी? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया लॉ मेकर्स वर outraged over Governor Arnold's announcement that commuters should have to pay construction cost on Bay Area bridges. Cost of one of the bridges has grown from $1.1 billion to $5.1 billion. Maybe it takes the Terminator to help control cost. तो ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो एकदम आउट आउटरीच कर गई और वो 1.1 बिलियन डॉलर से 5.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। और उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि हो सकता है किसी टर्मिनेटर की हेल्प चाहिए होगी। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग कैन बी अ पावरफुल टूल टू हेल्प कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मीटिंग्स हेल्प की जा सकती हैं। अब मीटिंग के अंदर क्या होगा? परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा कि आपने इस एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर कितना काम और किस तरह से काम किया। Knowing you have to report on your progress is an incentive for people to perform better। और अगर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगी महीने में, हफ्ते में, किसी भी टाइम पे या एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो आपके जो लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, वो डेफिनेटली बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो एक और अहम चीज़ है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। There are many general accounting approaches for measuring cost performance, but earned value management is a tool unique to project management. बहुत सारे तरीके हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस मेजर करने के, लेकिन उसमें से जो आपके पास पीवीएम है या अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है वो आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट को एस्टिमेट करने।